So, friends, very good morning once again. Uh, Actually, I am a scientist at, as Shimi told you, Central Scientific Instruments Organization. We are into the research and development of various instruments for industry. That includes hospitals also. That includes agri-pharma sector also, you know, and pure industry as well. So I have myself used some artificial intelligence. In fact, it's very wide topic. There are so many things inside artificial. Whatever you can think of as the pointer to intelligence, as the sort of the ingredients, contents of human intelligence, same can be applied to artificial intelligence. So there is no end to it. What is human intelligence? So, okay, I'll not go into the nitty-gritty of the theorems and I mean the methods, techniques of artificial intelligence. I'll keep the things simple. Rather, I'll like to give you some applications of this thing. Okay, that is my focus. That application must be covered better rather than I start telling you the search techniques and all those things. So first of all, let us start. This is basic, of course. It will continue for some time. What I will be covering is what is intelligence, first of all, and then what is artificial intelligence. Brief history of artificial intelligence. Then what progress has been in this field, and what are the applications, as I said. And then what again, as a conclusion, what again might be that your perception becomes better after some slides. So rational view of artificial intelligence. Now, first of all, intelligence. Very simple to define. It is the capacity to learn and capacity to solve problems. और किस तरह भी कर सकते हो क्या? Can you define it other way? Simplest. What is intelligence? Mogambo enjoy. That means we should be able to solve problems which are novel. देखो ऐसा है, novel word यहाँ पे important है, हालांकि मैंने different, I have not used a different color for novel. Routine problems, we all know what solutions. Well, Then ability to act rationally. Again यहाँ पे rationally important है. Rationally का मतलब with reasoning. That you, I mean, act in ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, government is bad, ये वो. But are we rational at that time? We normally, most of the time, we do not react rationally, but that doesn't mean we are not. वो saying ना कि भाई हमारे पूर्वज जो थे, our ancestors were monkeys. तो सामने वाले ने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे तो नहीं थे. So, and then the ability to act like humans. Okay, so what is artificial? So that means we have to think in a logical, and we have to be able to, should be able to do problems, whatever come to our life daily. And simple intelligence means whatever intelligence we can derive from computers, in fact. Artificial, which is not natural, intelligence human beings are doing. So can we be capable of doing all the? So now there are two things, in fact. Engineering aspect of artificial intelligence कि आपको उसको implement करना है, what, ठीक है ना? Suppose reasoning है, तो reasoning has to be hardware से, software. दूसरी चीज है cognitive modeling. That means आप उसका मॉडल बनाते हैं. उस केस में आप उस प्रॉब्लम को rather एक तरह से you are solving that problem.
ठीक है ना? तो दैट मीन्स वही अगेन व्हाट इज इंटेलिजेंस। हम कहते हैं कि मेरे पास इंटेलिजेंस है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास में सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं है आईज नोज और ये टच की फीलिंग और ये दुनिया उसने दिए, ठीक है ना? हम उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, पर तो हम कहते हैं थैंक यू उसको तो कर सेंसरी गिर जाएगा डेराइव and then through our motor neurons मतलब एक तो वाला एक्शन हो गया, एक रीजनिंग प्लानिंग हो गया, देन लर्निंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कैसे इंटेलिजेंट होता है? बच्चा तब तक इंटेलिजेंट नहीं है जब तक आप उसको जो है एक तरह से लर्निंग ना करवाओ। वो है ना कि भाई इफ यू लीव हिम इन फॉरेस्ट, भालुओं के बीच में बच्चे, वो था ना पहले तो, हाँ मुरली, वो तो चलो तो फिक्शन है, लेकिन फिक्शन की बात नहीं है ना, मैं तो एक्चुअल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि देयर वाज ए चाइल्ड, ही वाज ब्रॉट अप व्हाइल इन द फॉरेस्ट। तो जो ये बियर्स होते हैं इनके बीच में, तो उसने वही सीखा भाई। उसके नाखून जब व्हेन ही वाज फाउंड, तो उसके नेल्स जो थे पता नहीं कितने लंबे लंबे, और बिकॉज ही नेवर न्यू हाउ टू कट नेल्स एंड वेदर दे शुड बी कट एट ऑल। तो दैट मीन्स लर्निंग, उससे सीखता है। एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू, मतलब लर्न करता है। चेंज एडेप्टेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? एडेप्टेशन का मतलब ये समझो कि सपोज देयर इज ए सीलिंग फैन, फॉर एग्जांपल देयर इज ए फैन, है ना? नाउ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, प्रोबेबली मैं टोल्ड मी इट इज ए फैन, तो दिमाग में एक इमेज बन गई, ठीक है ना? एन इमेज, एवरीबॉडी हैड एन इमेज कि भाई जिसके 3 ब्लेड्स होते हैं, बीच में एक बड़ा सा बेकार सा किसकी मोटर होती है, ठीक है ना, घूम चलती है, जो जैसे होता है, बन गई आपकी। अब आप सोचो कि जो शादी में और उनमें वेडिंग्स में जो गंदा सा एक फैन होता है ना, आवाज ज्यादा करता है, तो देता नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? वो कैसे पता लगा आपको कि वो भी फैन है? उसी तरह घूम रहा था वो, उसी तरह से उसके ब्लेड थे, वैसे यूं करे हुए मुड़े हुए से, ठीक है, जैसे भी थे। बट यू केम टू नो कि फैन फ्रॉम दैट नॉलेज विच यू हैड इन द होता है प्रोबेबली। तो तुम जितने भी पेडेस्टल फैन है, जितने भी टेबल फैन है, जितने भी और बाकी गंदे देते हो, तो इट मींस दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इंटरपोलेशन की आप में कैपेबिलिटी आ गई, अडेप्ट कर सकते हो आप सिचुएशन में। अच्छा, तो दैट मीन्स व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्टिफिशियल, कि हाउ ह्यूमंस थिंक, ठीक है ना? थिंक, ठीक है ना? हाउ ह्यूमंस एक्ट सिचुएशन, they should act, how the machine should act, how think। तो इसका मतलब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट कर दी, ठीक है ना? अब देखो ट्यूरिंग टेस्ट, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी, 2-3। वन थिंग इज ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है कि सपोज यू हैव प्रोग्राम्ड ए कंप्यूटर and you have made it intelligent. How will you contest whether the machine is at present intelligent or not? आप क्या सोचते हो? टेस्ट कैसे करोगे? ठीक है, इंटेलिजेंस के सब इंग्रेडिएंट्स भी नो, लॉजिकल रीजनिंग, ये होना चाहिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इट शुड बी एबल टू एक्ट ऑल्सो, वॉट एवर। और एक्ट का मतलब कंप्यूटर के लिए तो आउटपुट देना ही हुआ ना। कंप्यूटर अंदर से हाथ से घूसा तो नहीं बजा देगा तुम्हारे, ठीक है ना? एक्ट का मतलब वहां पे मसल एक्शन नहीं है, एक्ट का मतलब ये कि आउटपुट देना।
just whether is intelligent or not. ठीक है, हम जो परफॉर्म हम खुद करते हैं, जो काम कोई इंटेंस वर्क करते हैं, लाइक एस्टिमेटिंग कुछ हो गया, वो हम उसमें परफॉर्म करवा के देखते हैं। हाँ, तो कैसे करवाओगे? मान लो अगर तुमसे कहा जाए, लेट अस से, बहुत जनरल है ना, कंप्यूटर से आपने इंटेलिजेंट वर्क परफॉर्म कराना है, आपने कहा, मैंने एग्री कर लिया, ठीक है ना, अब क्या परफॉर्म कराओगे, बताओ मुझे। उसको इंस्ट्रक्शन देंगे सर हम। इंस्ट्रक्शन देंगे? सर क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? वो सर हमारे पास जो डेटा होगा, हमें जैसे हम आज के लाइफ में काम करते हैं, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, हाँ, जैसे कोई एक मतलब कोई एडिशन हो गया, कोई बहुत लंबा एडिशन है, किसी का बिजनेस चल रहा है, हाँ, तो एडिशन करना कोई एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, हाँ, वो कितना टाइम ले रहा है, इंटेलिजेंट है वो। तो भाई अगर उस अगर लेट अस से यार्ड स्टिक से चलो, तो कंप्यूटर जो है ना, वो वाकई में अपना हाथ अंदर से निकाल के थप्पड़ मारेगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों क्यों क्यों? और मैं बता रहा हूं, कंप्यूटर पता है तुमसे कितने 10⁻⁴ कितना फास्टर है। अगर मैं आपसे कहूंगी 2/2 की, चलो 2 डिजिट बाय 2 डिजिट तो थोड़ा सा फिर भी कर लोगे, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट या 3 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दो मुझे, ठीक है ना, कितनी देर में करते हो? 356 को 87 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना टाइम लगता है। मैं घड़ी देख रहा हूं, ठीक है, मतलब तो सोच सकते हैं कि इट विल टेक सेकेंड्स, मे बी कि मिनट लग जाए, किसी को लग जाएगा ना। कंप्यूटर पता है कितनी कैलकुलेशन, मेगा हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट समझ सकते हो तुम, 10⁻⁴ समथिंग के 90 तो कहने का मतलब यह है कि इतना ऑपरेशन वो कर सकता है कि हम इमेजिन में नहीं कर सकते। और सुपर कंप्यूटर कहाँ वो हैं जो वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मतलब कितने लोग भाई जो है सहमति रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है, इत्तेफाक रखते हैं। कंप्यूटर से कई प्रोसेसर एक साथ कर सकता है, हाँ, बैक टू बैक। लाइक अगर हम इसको कंटिन्यूअसली, लाइक डेटा लॉगर्स होते हैं, वो भी एक हमारे मिनी कंप्यूटर टाइप के ही हैं, डिवाइसेस, उसको हमने फीड कर दिया, तो अब वो डेटा को ले भी रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, और उसका काम भी करवा रहा है कि जो उसको आउटपुट करना है फीडबैक के थ्रू। हाँ, बहुत तेजी से कर रहे हैं, है ना, कई काम एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। हमारी जरूरत नहीं पड़ रही है, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग वो चीज सोच नहीं पा रहे हैं, वो परफॉर्म कर ले रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन सर इन्वर्ट तो किसी ह्यूमन बीइंग नहीं किया। जब तक तुम ये कहोगे कि कंप्यूटर तेज ऑपरेशन कर सकते, फास्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कई सारे कर सकते हैं, और तुम्हारा क्या करता है, ब्रेन से कंपेयर करना भैया, ह्यूमन बीइंग का मतलब इंटेलिजेंस का ना ब्रेन। मतलब मानते हो ना? तो फिर अब अगर कंप्यूटर से फास्ट है ब्रेन, तो कंप्यूटर ने फिर इंटेलिजेंट मतलब टास्क किया क्या? अगर कैलकुलेशन की तो, या कई सारे ऑपरेशंस भी किए, लेटर से कई सारे ऑपरेशंस भी किए, तो लेकिन कंप्यूटर में जो टास्क हम दे रहे हैं, वो जिसके लिए हमने उसे बनाया वही टास्क करेगा। जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया, पैन गिर गया, हाँ, वो अगर हम उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो नहीं करेगा जो ह्यूमन कर सकता है, जो ह्यूमन कर सकता है। दैट मींस मतलब वो अपने माइंड का कितने % यूज करता था? हाँ, बहुत कम करता था, मतलब बहुत उनको ना फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या चीज को भी उन पे वर्क किया। दैट मींस पक्का ठीक है, इन्होंने जो जवाब दिया बहुत अच्छा है। कंप्यूटर सिर्फ वही कर रहा है ना जो तुम कह रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब चाहे वो फास्ट कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉट एवर यू आर सेइंग, ठीक है ना, जो तुमने उसको करने को कहा वो उसने कर दिया, ठीक है ना। तो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हुआ। देखो, ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट तभी कोई चीज हो सकती है व्हेन इट हैज सेंसरी इंफॉर्मेशन इनसाइड इट। जब तक उसके पास में एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है, तब तक वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो समहाउ पहली जिसने तुमने कहा था कि सेंसर इंटरफेस कर देते हैं, वो एक बात है कि कंप्यूटर तभी इंटेलिजेंट बनेगा जब सेंसर्स का इंटरफेसिंग होगी, है ना। न सिर्फ इंटरफेसिंग होगी, उस पे बेस्ड उसको एक्शन लेना भी आना चाहिए, ठीक है ना। चलो मान लो तुमने उसके लिए भी प्रोग्राम उसको कर दिया, अल्टीमेटली प्रोग्राम तो तुम ही करोगे,
ये तो पक्की बात है यार, कोई तो आके नहीं करेगा, ठीक है ना, प्रोग्राम तो तुम ही करोगे। लेट्स से तुमने इंटेलिजेंट बना लिया, मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम टेस्ट कैसे करोगे? तुम टेस्ट करने का मेथड तुमने बताया, कैलकुलेशन करवा लेंगे यार ये तो मजा नहीं आया, मोगैम्बो खुश नहीं हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन से अगले कुछ भी कर सकते हो, तो वो हमारे लिए टेस्ट हो सकते हैं। ट्यूरिंग ने यही बात बताई थी, उसने ये कहा कि यार ऐसा करो, एक कमरा है, एक रूम है, उसमें 2 बंदे बिठा दो। यार ये साउथ में भी सिग्नल जा रहा, साउथ मेरे ख्याल से देयर इज अ प्रॉब्लम ना, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश व्हाटएवर आई नो, है ना। चलो नॉर्थ वाले तो ठीक है, साउथ इंडियंस दे टू इट। व्हाट ही सेड कि ओके, मेक ए कंप्यूटर एंड ए ह्यूमन बीइंग sit in a separate room. Separate room means it should be separate from the one person who is testing their capability. That means तो एक तो हो गया इंट्रोगेटर जो इंट्रोगेट करेगा, और ये दोनों जवाब दे विल रिप्लाई। नाउ यू आस्क ए क्वेश्चन, उसको कैपेबल कर दिया तुमने, उसके बाद ही हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ टेकिंग इट्स ओन डिसीजंस, इट इज सेंसिंग द एनवायरमेंट, एवरीथिंग, आंख कान नाक सब कुछ है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इवन आफ्टर दैट मतलब वी आर टेस्टिंग इट। नाउ यू आस्क ए क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम, कंप्यूटर एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग, सिटिंग इन अ डिफरेंट रूम, सामने नहीं होनी चाहिए आपके। ट्यूरिंग का देखो वॉल है, अगर तुम इस डायग्राम में देखो देयर इज अ वॉल। अब दैट कंप्यूटर शुड ऑल्सो आंसर, ह्यूमन बीइंग शुड ऑल्सो आंसर। ह्यूमन बीइंग तो नॉर्मल आंसर करेगा, he will react to the question as his brain says, ठीक है कि नहीं। कंप्यूटर क्या करेगा? पैरामीटर चेंज होते हैं, हाँ, पैरामीटर चेंज होने पर जो ह्यूमन बीइंग के इफेक्ट आ रहा है वही रिजल्ट वहां पे हमारे कंप्यूटर पर चलेगा। जो सेट पैरामीटर इधर चेंज हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जो पैरामीटर है कंप्यूटर के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है, ट्यूनिंग प्रोसेस होता है, जिससे हम पैरामीटर चेंज करें अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट हमारा उसी के अकॉर्डिंग आता है जो पैरामीटर चेंज होता है। अच्छा, तो अब दैट मींस तुमने, कंप्यूटर ने तुम्हें भी वही रिप्लाई दे दिया व्हाट दैट ह्यूमन बीइंग इज गिविंग, इंटेलिजेंट हो गया, मतलब तुमने कहा इंटेलिजेंट है। अब ट्यूरिंग का अजम्पशन ये था, अजम्पशन नहीं मींस थ्योरी ये थी, अजम्पशन नहीं कहना चाहिए मुझे, गलत कह रहा हूं। थ्योरी ये थी कि ओके, कंप्यूटर इज रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आर पुटिंग इट। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग, जिस मोमेंट पे तुम जो है ये, इफ यू कैन से कि ये जो कंप्यूटर है उसको तुम ह्यूमन बीइंग बता दो, और ह्यूमन बीइंग को जिस मोमेंट, कंप्यूटर कैन मेक फूल ऑफ यू। मेक फूल का मतलब वो इस तरह से दिखाए कंप्यूटर कि जैसे वो ह्यूमन बीइंग है। इस बात के लिए लेट अस से कैलकुलेशन अगर तुम करवा रहे हो, और कैलकुलेशन मान लो वो 3 डिजिट बाई 2 डिजिट की कैलकुलेशन, अगर 1 मिनट में करने की उसकी पावर, मतलब वो है, उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो रिजल्ट तो इमीडिएटली दे ही सकता है ना, तो नहीं दे रहा, वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, 1 मिनट के बाद दे रहा है। और तुमने गलती से बता दिया कि यार ये कंप्यूटर नहीं, ये तो ह्यूमन बीइंग है क्योंकि इसने 1 मिनट के बाद दिया। दैट इज द टेस्ट कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो गया, है ना। जब वो तुम्हारा बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया तो इंटेलिजेंट हो गया। तो इंटेलिजेंट वो होता है जो दूसरे को बेवकूफ बनाता है, ठीक है, ये मतलब है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, देयर आर मैनी डिसिप्लिन्स, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, कहां देखो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, सब जगह है दुनिया में, ठीक ना। इकोनॉमिक्स में देख लो, ये सारी प्रॉब्लम्स लिस्टेड हैं जो कि डिफरेंट तरीके से तुम एआई टेक्निक यूज करके मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की हो, एआई में कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो एआई में जो बेसिक चीज है ना, वो है सर्चिंग द सॉल्यूशन, ठीक है ना। कि एक तुम्हारे पास में सोल्यूशन स्पेस है, देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए सोल्यूशन स्पेस। सोल्यूशन स्पेस का मतलब ये है देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, सेट ऑफ दो सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द सोल्यूशन स्पेस, ठीक है ना। उस सोल्यूशन स्पेस में से सर्च करना है ए पर्टिकुलर बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन यू हैव टू सर्च, ठीक है ना। अब उसको कैसे सर्च करोगे, उसके लिए टेक्निक्स हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम है, या लेट अस से यू हैव टू प्ले ए गेम,
चेकर बोर्ड समझते हो? चेकर बोर्ड, चेकर पता है? सबसे पहले टिक टैक टो पता है? टिक टैक टो बच्चे नहीं खेलते, वो 9 वो बना के क्रॉस मार दिया, 0 मार दिया, दैट इज कॉल्ड टिक टैक टो, ठीक है ना? एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वाज सॉल्व्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक बाय कंप्यूटर, टिक टैक टो। चेकर बोर्ड में तो ब्लैक एंड व्हाइट वो है, ठीक है ना? तो इस टाइप का बोर्ड। और ह्यूमन, देखो कंप्यूटर्स तुम कहते हो बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है ना? मैं तुम्हें एक बहुत अजीब सी एग्जांपल बताता हूं, तो मैं लाइफ में, मतलब मैंने वो एग्जांपल अपनी आंखों से देखी है, ठीक है ना? व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक, मैंने बीटेक किया पिलानी से, बिट्स पिलानी से, ठीक है ना? व्हेन आई वाज, तो वहां पे क्या होता था, हम जब बीटेक में थे तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता था कॉलेजों में, ठीक है ना? इस टाइप की चीजें। तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमें जैसे प्रॉब्लम दे दी मैथमेटिक्स की, एंड दैट प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड बाय यू, उसके लिए तुम्हें 15 दिन मिलेंगे, तो कहीं सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को। 15-20 ऐसी प्रॉब्लम होती थी और दिन भी इतने मिलते थे। उसमें से एक प्रॉब्लम हमें दी कि सपोज देयर इज ए चेस बोर्ड 8x8 का होता है, पता है? चेस बोर्ड 8x8 का होता है। चेस बोर्ड में जो सेंटर के 4 स्क्वायर्स हैं, उनमें एक वो रख दिया बिशप, ना बिशप नहीं, घोड़े को क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, क्या कहते हैं घोड़े? नाइट रख दिया, ठीक है ना? नाइट जो है वो क्या करता है, वो 2.5 मूव करता है ना, 1-2 फिर टेढ़ा चलता है, ठीक है ना? वो घोड़ा ही क्या जो सीधा चले तो टेढ़ा चलता है। तो वहां से अब तुमने जहां पे उसको रखा, वेयर एवर एट दैट पोजिशन यू राइट, चारों एक जैसी है ना? सेंटर की चारों पोजीशन एक जैसी है, कोई फर्क तो नहीं है। अगर डायरेक्शन ही चेंज करके देखो तो एक जैसा लगेगा। तुमने जिस भी जगह रखा 1, उसके बाद में घोड़े जी को चलाया तो 1-2 टेढ़ा चला। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सोच लो खुद, किस डायरेक्शन में घोड़े जी चल सकते हैं। वहां पे जहां पे भी चला वो उसको 2 लिख दिया, बड़ा मजा आया, ठीक है ना? फिर जहां पे गया उसके बाद में उसको फिर चलाया, अगेन देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस, जहां पे चलाओ 3 लिख दो। इस तरह से लिखते तुमने पूरा चेस बोर्ड भर दिया, ठीक है ना? तुम्हें चेस बोर्ड इस तरह से भरना है कि हर एक रो का और हर एक कॉलम का, चाहे किसी को रो कह दो किसी कॉलम, यहां पे अनइंपॉर्टेंट है, 8x8 है, सम 260 हो, नंबर्स का सम 260 हो, इस तरह से आपको घोड़ा चलाना है। अब हमने तो, ये बात है 75 की यार, उस टाइम कोई हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम पे फोर्ट्रान थी, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि फोर्ट्रान नाम की कोई लैंग्वेज भी होती थी कभी, है? टाइम पीसी नहीं होता था, कंप्यूटर जो था, देयर यूज्ड टू बी मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम्स, ठीक है ना? तो हमारे पास था IBM 1130, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर बोलते थे उसको। देयर वाज अ मिनी कंप्यूटर कॉल्ड IBM 1130। उसकी जो उसमें जो प्रोग्रामिंग थी कीबोर्ड से नहीं होती थी आजकल जैसे होती है। तब कार्ड्स होते थे, है ना? कार्ड होता था, ऐसे समझ लो कि जैसे आप शगुन का कार्ड नहीं होता, शगन देने वाला लिफाफा, वैसा लिफाफा होता था, या व्हाइट कलर का, मतलब उस 23x10 का लिफाफा नहीं होता, 23x10 का, उस साइज के कार्ड होते थे। स्लाइटली मतलब स्टिफ पेपर, मतलब बिल्कुल हल्का पेपर नहीं होता था, इसलिए कार्ड बोलते थे। और उनमें नंबर होते थे 1 0 0 0 0 0 80 कॉलम्स, फिर 1 1 1 1 80 टाइम्स, 2 3 4 इस तरह से 9 तक। एंड देयर यूज्ड टू बी की पंचिंग मशीन से पंच करो तो देयर यूज्ड टू बी 2 होल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच डिजिट और ईच सिंबल। अगर ए पंच किया तुमने, जैसे है ना, उसमें कार्ड डाल दिया, तो टाइपराइटर जैसे मैकेनिकल टाइपराइटर होता था ना, वैसे होता था बिल्कुल, उसमें होल हो जाता था। आर यू गेटिंग मी? है ना, होल हो जाता था। तो एक इंस्ट्रक्शन लिखा, लेट्स से आपने लिखी A = B + C, या फॉर लूप लिखा, डू लूप बोलते थे उसको, है ना? लिखा तो व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन यू आर राइटिंग, वन इंस्ट्रक्शन कुड
would be written on card only, and corresponding to that D, तुमने D प्रेस किया तो 2 होल हो गए, 1 में 3 पे, O प्रेस किया डू लूप O, कोई दूसरी जगह होल हो गए, लाइक दैट। आर यू गेटिंग? इस तरह से कंप्लीट प्रोग्राम का आप एक डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, वो पैक ऑफ कार्ड जो था वो कार्ड रीडर में, ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता था, उसमें प्लेस कर दिया जाता था। 1 कार्ड एट ए टाइम स्लाइड होगा, वो ऑप्टिकल जो एलईडीज और वो फोटो डिटेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे कहां पे होल हुआ है, फ्रॉम दैट दे विल एनकोड इट इनटू दैट कौन सी इंस्ट्रक्शन है, समझ गए? ये काम होता था। उसके बाद में वो जो था बाकी काम वैसे ही नॉर्मल की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाता था, और वो कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात छोड़ दो, कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस दैट इंस्ट्रक्शन, दैट वाज द सीन। आजकल की तरह मॉनिटर कुछ नहीं, ठीक है ना। और उसका आउटपुट आ जाता था, अगले दिन आपको आउटपुट मिलता था वहां से, ठीक है ना। भाई लाइन में लगे हैं लोगों के, बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपना अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई कुछ, तो लाइन में लगे होते थे, और वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता था भाई उसकी। ऐसा थोड़ी है कि इमीडिएटली यहाँ टाइप किया, यहाँ मॉनिटर पे आ गया, ये जो चल रहा है, ठीक है ना। कार्ड रीडर वो करेगा, फिर प्रोग्राम आउटपुट आएगा उसका, लाइक दैट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, घोड़ा चला दिया, और हमने हमारी क्लास में एक लड़का था यार, हम उसको जो थे मतलब मैथमेटिक्स का दादा मानते थे, दाद बोलते थे, दाद है यार, संपत सराफ उसका नाम था। हमने उसको चैलेंज किया कि ये प्रॉब्लम है, जब तक उसको प्रॉब्लम मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम मिली ना, हमने सोचा यार इसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्ट्रान प्रोग्राम लिखते हैं और इसको चला के देखते हैं, वो नंबर्स आ जाएंगे। उसने कहा कि मैं इस काम को मैन्युअली कर सकता हूं, आई कैन डू इट। हमने कहा यार क्यों बेकार की बकवास कर रहा है तू, ये मैन्युअली पॉसिबल है, इतने कॉम्बिनेशंस, मतलब इतने कॉम्बिनेशंस जो है, यू कैन इमेजिन हर एक पॉइंट को पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग घोड़ा के वो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसने कहा कर सकता हूं मैं, एंड हमने कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा अपना, ठीक है ना। उसको उसके बाद में प्रॉब्लम मतलब बताई कि हमने लिख लिया है ये प्रोग्राम तो फोर्ट्रान में। उसने कहा तुम कंप्यूटर से प्रोसेस कराओ, मैं मैनुअली करता हूं। कंप्यूटर ने 45 मिनट्स के बाद आंसर दिया। इस प्रॉब्लम का आंसर कंप्यूटर ने मतलब उसको ऑनलाइन चलाया, ऐसे नहीं कि हम सबमिट करके आ गए, अपने हमने चलाया कि ये तो हमें चाहिए ही ना अभी। एंड 43 मिनट्स में 2 मिनट पहले उस संपत कुमार सराफ ने वो नंबर लिख दिया उस पर, दे वर द सेम। तो क्या कहोगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? मतलब मैं तो उस टाइम देख के हैरान रह गया कि कहां तक ह्यूमन इंटेलिजेंस पहुंच सकती है। वी कुड नेवर इमेजिन इसकी इतने ये प्रोग्राम कोई मैनुअली वो नंबर लिख सकता है। आज तक मैं चैलेंज करता हूं कि कोई लिख के दिखा दे मुझे, ठीक है ना। कंप्यूटर विल गिव द आउटपुट मच फास्टर नाउ। वो तो कंप्यूटर क्या क्या कैपेबिलिटीज हो गई हैं, न्यूमेरिक कैपेबिलिटीज जबरदस्त हैं। तब इतनी कैपेबिलिटीज थोड़ी होती थी, तो 45 मिनट्स लग गए कंप्यूटर। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का फिर भी कोई मुकाबला नहीं है। तो ट्यूरिंग ने ये कहा कि जब कंप्यूटर को तुम इतना कर दोगे कि वो तुम्हें बेवकूफ बना दे, तो इसका मतलब वाकई में इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है ना। तो देखो इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी हिस्ट्री जो है उसमें सबसे पहले इनफैक्ट परसेप्शन ये था कि यार ह्यूमन जो है ना, सेंसरी वेंसरी तो बात की बात है, इट इज द ब्रेन विच मेक्स यू इंटेलिजेंट। ब्रेन थिंकिंग पावर, ठीक है ना। और ब्रेन जो है वो थिंक कैसे करता है, तुम्हारे ब्रेन, ठीक है, न्यूरॉन्स जो करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, सेंसर इंफॉर्मेशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेन में जब फायर करते हैं वो एक्टिवेट, एंड वन न्यूरॉन गिव्स इंफॉर्मेशन टू यू डोंट नो हाउ मेनी न्यूरॉन्स, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन ये पक्की बात है कि इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले लोगों ने ब्रेन का मॉडल बनाना शुरू किया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, दैट वाज वे बैक इन 1943। तो मैकलक एंड पिट्स मॉडल जो है वो आज तक माना जाता है कि दिस इज द फ्रॉम द जेनेसिस, मतलब वहां से हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उस बाद में ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है ना, वो सब चीजें हुई। उसके बाद में दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम वाज गिवन इन 1956 टू दिस साइंस,
ठीक है ना, ये सारे आए। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लैंग्वेजेस डेवलप की गई, लिस्प और प्रोलोग, ठीक है ना, ये 2 लैंग्वेजेस हैं। जिस तरह से सी है, फोर्टाना, ये सब हैं, उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जो कि मतलब रीजनिंग से ज्यादा रिलेटेड है, मतलब ठीक है ना। उनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की है कि अपने आप वो काफी सारी रीजनिंग अपने अंदर ले लेती हैं लैंग्वेजेस। हालांकि तुम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकते हो कंप्यूटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कि सी में कुछ नहीं है, सी में होता है अब तो, बल्कि लिस्ट ऑफ, ठीक है ना। लेकिन जब बनाई गई थी तो बनाई गई थी, तो इस तरह से चलता रहा ये, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोगों को मतलब डेवलप करते रहे लोग, एक से एक प्रोग्राम लिखते रहे, इंटेलिजेंट बनाते रहे कंप्यूटर को, सब कुछ करते रहे, ठीक है ना। विश्वास कब हुआ? सबसे पहली एप्लीकेशन जो है इसकी, वो मतलब गल्फ वार में इनफैक्ट मिलती है, जब यूएसए ने इराक पे अटैक किया था, ठीक है ना। तो सब वहां पे आर्टिफिशियल लॉजिस्टिक्स जो थी वो फॉलो हुई थी। उसके बाद 1997 में जब ये जो डीप ब्लू कंप्यूटर था, उसने डीप ब्लू जो मतलब प्रोग्राम था, इनफैक्ट डीप ब्लू जो था चेस का खेलने का प्रोग्राम था, जब उसने गैरी कास्परोव को डिफीट किया था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जो प्रोग्राम था, इट डिफीटेड द रेनिंग चैंपियन गैरी कास्परोव, ठीक है। और बाकी चलता रहा, पता नहीं कितने मतलब इसकी सक्सेस स्टोरीज। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है डार्पा, ठीक है ना, डिफेंस एकेडमी, इसका फुल फॉर्म जो है डार्पा जो है, ये है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, यूएसए की। तो ये डार्पा एक प्रोजेक्ट था बाकायदा, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि ऑफ द रूट, मतलब नॉट द मेन रोड, रादर वो एक हिली सा ऐसा रोड है, देखो इसको यहाँ पे, ये मेन रोड मतलब मेटली रोड नहीं, ये देखो लेफ्ट में, तो ये मिट्टी की सी सैंड और मड की सी रोड है। इस पे कई कंप्यूटर्स जो थे, कंप्यूटराइज्ड कार्स कहो, मतलब कंप्यूटर्स, तो उस टाइम उनको रोबोट कहा गया था, ठीक है ना। दिस ये चीज, दिस वाज कॉल्ड ए मूविंग रोबोट, बट इनफैक्ट थी वो कार ही। उसके ऊपर जो थे सारे दुनिया भर के नेविगेशन सेंसर्स लगाए गए थे, ये नेविगेट करते हुए अपने आप जाएंगे। आईआर सेंसर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी थे, ठीक है ना। तो देव और इनका कंपटीशन मतलब रखा गया था, पता नहीं कितनी कार्स थी वो, इसमें कहीं दिया तो है कि हाउ मेनी कार्स वर देयर इन दैट कंपटीशन, बट आइडिया ये है कि दे वर टू नेविगेट ड्राइवरलेस, कोई रिमोट कंट्रोल यूज नहीं होगा, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है ना। और कैश प्राइस रखा गया था $1 to 2 million, जो कार फास्टेस्ट मतलब सबसे पहले डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। बहुत फेमस वो है ये डार्पा प्रोजेक्ट। 150 माइल्स का रूट था, ठीक है ना। वो रूट मतलब शुरू में 2004 में ये था, ये 3 साल तक लगातार की गई थी रेस जो थी, ठीक है ना, ड्राइवरलेस कार की। ये इतने इसमें मतलब ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, कितने इसमें सेंसर्स लगे थे, ठीक है ना, और कितने नेविगेशन के लिए कितना क्या क्या प्रोग्राम्स थे, लेजर प्रोग्राम वो थे, रेंज सेंसर्स इसमें, आईआर और अल्ट्रा, ठीक है ना। पाथ प्लानिंग कितनी जबरदस्त की गई थी इसकी, जो रोबोट की पाथ प्लानिंग तो कुछ भी नहीं होती, रोबोट तो बेचारा ज्यादातर खड़ा स्टैटिक होते हैं क्योंकि, ठीक है ना, स्टीयरिंग कंट्रोल, ये तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दैट, मतलब फेमस प्रोजेक्ट। ये रूट दिया है, इट हैज टू फाइंड द रूट बाय इटसेल्फ, एवरीथिंग वाज टू बी डन बाय इटसेल्फ। तो ये लिखा है जैसे 150 माइल ऑफ रोड रोबोट रेस अक्रॉस द दिस डेजर्ट, ठीक है ना। और हैजार्ड्स बीच में रखे गए थे, इसीलिए कि वेदर इट कैन गो अराउंड दोज हैजार्ड्स, जैसे ट्रिपल वो नहीं होते रेस में वो रख देते हैं, हर्डल्स रख देते हैं, तो यहाँ पे हम उनको हैजार्ड्स बोलते हैं इसमें रोबोट की लैंग्वेज में। नो ड्राइवर, नो रिमोट कंट्रोल, ये सब फास्टेस्ट को प्राइस, तो दैट वाज द डार्पा। तो तब लोगों को हुआ कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या क्या कर सकती है, ठीक है ना। देन एक मूवी आई 69 में, ठीक है ना, और ये जो थी ये थी 2001 ए स्पेस ऑडिसी,
ठीक है ना, यूएस ये मूवी आई थी 69 में, जिसने कि ये प्रिडिक्ट किया था, उस टाइम साइंस फिक्शन था कि कंप्यूटर, HAL वाज द नेम ऑफ द कंप्यूटर दिस मूवी, उसका नाम रखा गया था एच हाल, हाल रखा गया था। इट कैन इजीली स्पीक विद द क्रू, ठीक है ना, सी एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द क्रू, नेविगेट द शिप, मतलब शिप को, कंप्यूटर को एक शिप चलाना था, डायग्नोज द ऑनबोर्ड प्रॉब्लम्स, मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजंस, डिस्प्ले इमोशंस बाय इटसेल्फ, ठीक है ना, ये सारे काम कंप्यूटर से करवाने थे उन्होंने। तो जो साइंस फिक्शन था वो आज ट्रूथ है। उन्होंने कहा था 2001 में ट्रू हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम 2001 रखा गया था। तो लगभग वाकई में 2001 में काफी चीजें, भाई इंप्रूवमेंट तो चलता ही रहता है, बट सो मेनी थिंग्स वर प्रूव्ड इन फैक्ट, ठीक है ना। तो ये वो है कि भाई हाल को बनाने के लिए क्या कैपेबिलिटीज जो है तुम सोचते हो कि ऐसा कंप्यूटर विच कैन डू ऑल सच थिंग्स, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इस तरह से मतलब चेस प्लेइंग ये सब तो इस तरह से चलता रहेगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं ना कि भाई जो इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है। हम ये चाहते हैं कि हाँ, कैन कंप्यूटर्स टॉक। जो मेन चीज है सेंसरी इंफॉर्मेशन के साथ में वो है हमारी एक चीज जो है स्पीच, जो ह्यूमन बींग के पास है। तो कैन कंप्यूटर्स टॉक, ठीक है ना, उसके साथ में क्या डिफिकल्टीज हैं। स्पीच सिंथेसिस मतलब तुम कर सकते हो। कैन दे रिकॉग्नाइज योर स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कंप्यूटर को हम प्रोग्राम नहीं करना चाहते, नेचुरल लैंग्वेज में हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, नेचुरल लैंग्वेज में। इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। जिस दिन ये परफेक्ट हो गया 100%, दैट मीन्स बहुत इंटेलिजेंट हो गया कंप्यूटर। तो दैट मीन्स स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है ना। ये है स्पीच रिकॉग्निशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीच अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। देखो डिफरेंस क्या है आफ्टर ऑल, है ना, जब तुम कहते हो कि डेटा है सब कुछ जिंदगी में, डेटा है, क्या मतलब है डेटा का? है तो सब कुछ डेटा, कंप्यूटर भी डेटा है, हमारे ब्रेन में भी जो जा रहा है वो भी डेटा है, सब इंफॉर्मेशन ही तो है ना, सब इंफॉर्मेशन ही तो है दुनिया में। कंप्यूटर को भी इंफॉर्मेशन जा रही है, तुम्हारे ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन जा रही है। तुम इंटेलिजेंट कहे जाते हो यार, कंप्यूटर बेचारा मुंह देखता रहता है तुम्हारा, ठीक है। क्यों इतनी पैथेटिक कंडीशन उसकी क्यों है? वो इसलिए कि वो डेटा को समझता नहीं है, डेटा को 1 और 0 की सीक्वेंसिंग उसके लिए है, बस उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुम क्यों समझ पाते हो? क्योंकि तुम उस डेटा में एक पैटर्न ढूंढ लेते हो। कभी भी सोच के देखो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मोबाइल नंबर कैसे याद रह जाता, मतलब क्या क्या है उसमें, कैसे याद रह जाता है? पता नहीं कितनी कितनी चीजें याद रहती हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए वो अननोइंगली तुम उसमें, मतलब कोई नोइंग, कोई ये नहीं है कोई जरूरी कि मुझे कोई चीज याद रखने के लिए यही देखना हो कि 3 का डबल 6 है, वो भी आ रहा है कि नहीं, हाँ 3 + 6 है और अगली डिजिट 9। नो, आवर ब्रेन फाइंड्स आउट द पैटर्न इन ए डेटा स्ट्रीम बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। हमारा ब्रेन जो है वो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन करता है, जो कि कंप्यूटर जो है वो नहीं करता। कंप्यूटर डेटा को डेटा की तरह से देखता है, हम डेटा को पैटर्न की तरह से देखते हैं। दैट्स द डिफरेंस व्हिच मेक्स अस इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो बात वही है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी। उसके बाद में क्या कंप्यूटर के पास में लर्निंग कैपेबिलिटी है जो आपके ब्रेन में है? अगर कंप्यूटर को भी लर्न करवा दो, डेफिनेटली इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, ठीक है ना। उनके पास विजन की कितनी कैपेबिलिटी है? आप तो एक चीज के पीछे दूसरी चीज छुपी हुई भी देख लेते हो, ऑब्सक्यूर्ड इमेजेस भी देख लेते हो, डिस्टिंक्ट तो कहने की बात ही क्या है ना। कंप्यूटर के पास एक कैपेबिलिटी है देखने की, ठीक है ना। किस तरह से देखता है वो, आप इसको देख पा रहे हो कि ये ए लिखा है यार, चाहे ए पढ़ा है, चाहे लेटा है, चाहे सो रहा है, चाहे खड़ा है, कुछ भी है, वो ए समझ में आ रहा है आपको। कंप्यूटर क्या कर सकता है? जब तक ए ना बताओ उसको तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए, ठीक है ना। तो सी का मतलब ये है, ठीक है ना। प्लानिंग कर सकता है कंप्यूटर खुद से,
डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा मैंने कहा था कि क्या क्या एप्लीकेशन है, डेली तुम एनकाउंटर करते हो इनको, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, ये सारी की सारी चीजें डेली आपके सामने आती हैं। आपको पता नहीं चलता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की कहाँ कहाँ यूज हो रही है जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां भी है जहां पे तुम्हारा कंप्यूटराइज रिजर्वेशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी पता नहीं कितनी डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है थिंकिंग ह्यूमनली एक्टिंग, तो ये बात थी। एक मिनट, अब मैं जरा दूसरी चीज पे आ रहा हूं आपकी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है विच मेक्स मतलब इंटेलिजेंट इमिटेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये तो चलो छोड़ो, मोटिवेशन वगैरह तो क्या लैंग्वेजेस थी, क्या थी वो, किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंचे, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इतना आप समझ लो कि इट इज द पैटर्न रिकॉग्निशन विच मेक्स अस इंटेलिजेंट। पैटर्न रिकॉग्निशन में सिर्फ मतलब कई सारे टास्क होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन इज नॉट ए सिंगल टास्क, ये ध्यान रखना। पैटर्न रिकॉग्निशन में इतने सारे टास्क हो सकते हैं, पैटर्न एसोसिएशन, पैटर्न क्लासिफिकेशन, पैटर्न मैपिंग, पैटर्न की क्लस्टरिंग, फीचर मैपिंग, पैटर्न मैपिंग अलग है, फीचर मैपिंग अलग है, एंड पैटर्न वेरिएबिलिटी के साथ डील करना, ठीक है ना। ये सारे पैटर्न रिकॉग्निशन टास्क हैं। इनको तो चलो छोड़ दो कि भाई क्या पैटर्न एसोसिएशन मींस इस पैटर्न के साथ में एक पर्टिकुलर आउटपुट एसोसिएट करना, दैट इज एसोसिएशन। क्लासिफिकेशन मींस ग्रुपिंग करना कि ये इस ग्रुप को बिलोंग करता है, इस तरह से, ये सब छोड़ दो। आइडिया क्या है सबसे पहले तो कि व्हाट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, फॉर दैट मैटर नेचुरल न्यूरल नेटवर्क मींस बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है ना। अब मतलब तो जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है हमारे ब्रेन की, ठीक है ना, मतलब जिसको कहते हैं मार्के की चीज दी है भगवान ने हमें, का मतलब समझते हो टॉलरेंस। लोग, आप लोगों का क्या परसेप्शन है फॉल्ट टॉलरेंस का? व्हाट इज ए फॉल्ट टॉलरेंस? अगर हो तो हाँ, जो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर उस सिस्टम में कुछ पोर्शन सिस्टम का अगर फेल भी हो जाए तो भी बिल्कुल सही आउटपुट दे, फॉल्ट भी पड़ जाए कहीं पे तो भी वो सही आउटपुट दे, है ना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया जाता है, तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं। तुम गए एक रेस्टोरेंट में, कहीं पे गए रेस्टोरेंट में, और गर्लफ्रेंड को कह दिया तुमने कि तू भी आ जा, ठीक है ना, चलो, एंड योर बैक इज टुवर्ड्स द डोर ऑफ द रेस्टोरेंट। बाई चांस तुम्हें सीट ऐसी मिली कि तुम्हारी बैक जो है वो डोर की तरफ है। रेस्टोरेंट में कई सारे लोग हैं, होंगे ही भाई, खाली तुम ही थोड़ी हो दुनिया में, ठीक है ना। और वो सारे के सारे जो है मटर गश्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब दे आर ऑल टॉकिंग टू ईच अदर। तो देयर इज ए जनरल मतलब कि नॉइज सिस्टम में, रूम के अंदर नॉइज है, अच्छी खासी नॉइज है, ठीक है ना। अब उसमें कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा नाम भी हो सकता है कोई ले ले, ठीक है ना, तुम्हें जानता हो तो तुम्हारा नाम भी ले सकता है, ठीक है, बात कर ली उससे, सब हो गया, बैठे हो तुम, एंड योर गर्लफ्रेंड एंटर्स। तुम तो नहीं देख रहे हो उसको, नाउ फ्रॉम सम डिस्टेंस शी कॉल्स योर नेम, लेट अस से, ठीक है ना, एंड हर वॉइस एम्पलीट्यूड इज बिलो द एम्पलीट्यूड ऑफ द नॉइज इन द रूम। कंडीशन ये है उसकी वॉइस का जो एम्पलीट्यूड है वो फिर भी तुम एकदम से वॉइस सुन के पहचान लेते हैं, यार ये मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। डांट खाने के। इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। सिग्नल और नॉइज का कॉम्बिनेशन है, नॉइज ज्यादा है, सिग्नल कम है, तब भी सिग्नल बाहर निकाल लेना, इसको फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं, है ना। उस टाइम देखा जाए तो सिस्टम तो फेल है पूरा,
फिर भी आउटपुट सही है। तो न्यूरल, हमारा ब्रेन ये काम करता है कि अगर ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स अगर फायर ना भी करे ना, मतलब तुम्हें पता नहीं लगता ये बात, ये अंदर हो रहा होता है। कई सारे न्यूरॉन्स जो है वो बेचारे नहीं फायरते टाइम, स्टिल तुम्हारी इंटरप्रिटेशन सही होती है सिचुएशन की। चाहे आईज देख रही हैं, चाहे तुम सुन रहे हो, वो सब न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में इंफॉर्मेशन सही पहुंचा देते हैं, है ना। तुम्हारा ब्रेन फॉल्ट टॉलरेंट होता है। दिस इज द बेस्ट थिंग विद योर ब्रेन। बाकी रियल टाइम ऑपरेशन ये सब छुतरीबाजी है, ठीक है। अडेप्टिव लर्निंग। अच्छा, ये तुम्हें पता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन, यू नो, कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, वो सब पता है, वो पढ़ चुके होगे तुम बायोलॉजी में बहुत पहले, कि सेल होता है यार दुनिया में, जैसे बहुत बॉडी के सेल है ऐसे न्यूरॉन भी एक सेल है, कंसिस्ट ऑफ ए सेल। और सेल में न्यूक्लियस होता ही होता है ना, ये तो याद होगा कि न्यूक्लियस होता है, और वही प्रोसेसिंग एलिमेंट है। सारी कैलकुलेशन यहां पे होती है इसके अंदर। एंड वॉट एवर इज द आउटपुट दैट गोज आउट थ्रू द एक्सॉन। एक्सॉन जो है एक मोटा सा, समझ लो, तार है, थिक वायर है, जहां पे वो ज्वाइन होता है ना न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। हिलॉक मींस ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन वायर विद द बेसिक सेल। तो दैट इंफॉर्मेशन गोज, आउटपुट इंफॉर्मेशन गोज थ्रू एक्सॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग। Manikandan, I'll call you after some time, after half an hour, I'll definitely call you. Okay. क्या तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन जा रही है, नेक्स्ट न्यूरॉन्स के जो इनपुट हैं, दोज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इनपुट्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो वो डेंड्राइट जो है वो फॉलिकल की ऐसे फैले होते हैं, ठीक है ना। तो आवर एक्सॉन टेक्स द इंफॉर्मेशन टू द डेंड्राइट, और ये सारी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये रियली में इलेक्ट्रिक हो रहा है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो ना, तो डाउट मत करना कि रियली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो कहते हैं ना कि हमारे शरीर में बिजली है, वाकई बिजली है। ओके, एक्सेप्ट एट दैट प्लेस जहां पे कि जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड सिनाप्स, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड सिनाप्स, जो कि अगले डेंड्राइट से जुड़ा होता है, वहां पे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा इलेक्ट्रिकल से वो होता है। इसीलिए जितना भी हमारा जो ईईजी है, ब्रेन से जो सिग्नल जनरेट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, तुम ह्यूमन बीइंग को अगर देखो ना, तो कितने कनेक्शंस होते हैं, बाकी सब तो चलो बेकार की इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट दो इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं वो लगभग 10⁻11 इस ऑर्डर के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और जो कनेक्शंस हैं 15 के ऑर्डर के होते हैं। न्यूरॉन एक ही न्यूरॉन से कनेक्टेड है? नो, वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू मेनी न्यूरॉन्स। सो 10⁻15 के ऑर्डर के कनेक्शन हैं और इतने न्यूरॉन्स हैं, यानी कि देख लो कि मैसिव न्यूरल नेटवर्क है ये। ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिंदगी में हम तो बना नहीं सकते अभी 100 साल तक, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। 5 साल हम बेचारे डीएसपी प्रोसेसर लेके या माइक्रो कंट्रोलर लेके उनको जोड़ जाड़ के कुछ बना देते हैं, करता वर्ता वो कुछ है नहीं, ठीक है, और कह देते हैं न्यूरल नेटवर्क बन गया। तो देखो, चलो ये छोड़ो, रिसेप्टर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और दो तरह, मतलब ये तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि वन न्यूरॉन कैन आइदर फायर अनदर न्यूरॉन और एन इनहिबिट अदर न्यूरॉन। दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, जो एक्साइटेशन करते हैं, जो इनहिबिट करते हैं एक्साइटेशन को। इनहिबिट करना भी तो जरूरी है, सारे न्यूरॉन्स अगर फायर हो गए तो पता नहीं केओस मच जाएगा, ठीक है ना। तो वो सही तरीके से फायर होने चाहिए, यानी कि जो पहले फायर हो रहे तो वो इनहिबिट भी तो होने चाहिए ना नेक्स्ट मोमेंट। तो ये चलता रहता है। तो सबसे पहले हॉपफील्ड एक बंदा था, हॉपफील्ड का नाम सुना होगा तुमने कभी, है ना, हॉपफील्ड्स नेटवर्क कभी
फिर तो चांस कम है। हॉपफील्ड नेटवर्क जो है बहुत फेमस है। सुना है? हॉपफील्ड नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली हॉपफील्ड नेटवर्क ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर and every interconnection has got a weight associated with it. Every interconnection has a weight associated with it. Neuron will have the capability to fire that neuron which is connected to it by positive weight. And if suppose there is a neuron which is connected to another neuron by a negative weight, तो वो उसको फायर नहीं करेगा। जो पॉजिटिव वेट से कनेक्टेड है उसको फायर करेगा। तो अगर कोई न्यूरॉन जो है किसी मूवमेंट पे फायर होता है, ठीक है ना, तो थोड़ी देर में फायर होने के बाद में उनके वेट्स अगर जैसे जो फिक्स्ड हैं, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपका ब्रेन जो है ना वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। जो न्यूरॉन फायर हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो न्यूरॉन इनहिबिटेड है वो इनहिबिटेड है, यानी कि फायर नहीं हो रहे हैं। एक स्टेबल स्टेट आ जाएगी ब्रेन की, ठीक है ना। हॉपफील्ड नेटवर्क बेसिकली ये था कि न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर। उसके बाद में लोगों ने उस पर इंप्रूव किया हॉपफील्ड नेटवर्क पे। खैर ये अच्छा, तुम बात कर रहे थे ना ब्रेन और कंप्यूटर के कंपैरिजन की उस टाइम, ठीक है ना, देख लो कंपैरिजन भी जब आई गया। तो ये स्पीड, कई तरह से कंपैरिजन है, स्पीड वाइज, प्रोसेसिंग, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टोरेज, फॉल्ट टॉलरेंस एंड कंट्रोल। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो ना, ब्रेन को और कंप्यूटर को, तो स्पीड के अलावा तुम्हारा कंप्यूटर कहीं स्कोर नहीं करता, हर जगह मार खाएगा, पिट के जाएगा बंदे से। देख लो तुम प्रोसेसिंग, ब्रेन जो है पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यही है ना कि भाई कई सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे फायर हो रहे हैं, फायर होने वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं यार कई सारे न्यूरॉन्स। कंप्यूटर को तुम पैरेलल कंप्यूटर तो बना दिया, पैरेलल कंप्यूटर के अंदर तो ये सीक्वेंशियल प्रोसेस यार, एक इंस्ट्रक्शन के बाद में तभी तो दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा उसका सीपीयू, एएलयू, जो भी कहो यार, नाम कुछ भी दो, ठीक है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो काम करेगी एक कैलकुलेशन के बाद ही तो दूसरी कैलकुलेशन करेगी। इंस्ट्रक्शंस मान ले के फैच हुई एग्जीक्यूट, वैसे पैरेलल है। ओके, डेटा विच इज बीइंग फेड टू ए कंप्यूटर मे बी पैरेलल इन नेचर, लाइक वेदर इंफॉर्मेशन ऑफ द होल कंट्री कैन बी डिवाइडेड सेगमेंट, नॉर्थ का डेटा, साउथ का डेटा, ईस्ट का डेटा कैन बी पैरेलल, लेकिन बाय ईच ऑफ द एरे इज बीइंग डन सीक्वेंशियली ओनली। पहले डेटा का ये करो, फिर ये करो, फिर ये फिल्टर लगेगा, फिर वो फिल्टर लगेगा, फिर देख के जाएंगे क्लाउड्स हैं कि क्या क्लाउड्स की इंटेंसिटी है, क्या कलर है क्लाउड्स का, उसके बेस पे प्रिडिक्शन होता है सारा, ठीक है ना। तो पैरेलल प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का मतलब ये है। साइज कंप्यूटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली लार्ज होते हैं, कंप्यूटर में छोटे छोटे होते हैं। यहाँ कह सकते हो ओके कि कंप्यूटर इज बेटर, जितना मिनिएचराइजेशन आ गया टेक्नोलॉजी का, इसका तो मिनिएचराइजेशन भगवान ने वो नहीं कर सकता, इसको रीडिजाइन नहीं करेगा, वो कर दिया यार पता नहीं कितने बिलियन पहले जब हम बंदर थे, तुम्हारे पूर्वज होंगे मेरे नहीं थे, ठीक है ना, तब डिजाइन हो चुका, ठीक है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो डेली यार पता नहीं 1.8 माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी 180 नैनोमीटर, व्हाटएवर जो भी कह रहे हो आती रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी यार आज तक कोई समझ सका है क्या? आज तक तो धेला पता तो लगा नहीं कि ब्रेन के अंदर है क्या, है तो क्या पता लगेगा। स्टोरेज देखो कितनी जबरदस्त है हमारी, जब चाहा कुछ निकाल के बाहर फेंक फूंक के झाड़ झूड़ के अपने खड़े हो गए ठीक है ना, कुछ याद नहीं है, एनेस्थीसिया दे दिया, कुछ पता नहीं डॉक्टर नर्स क्या बातें कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे है ना, यही आइडिया। फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो तुम देख लो कि ब्रेन के है, शायद कंप्यूटर की नहीं हो, कंप्यूटर का कोई पार्ट यार तुम फेल करवा दो, चल एक लाइन में कट आ गया, हो गया कंप्यूटर का तो सत्यानाश, ठीक है ना। कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वहां पे तुम, इसीलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग, वहां पे कंट्रोल एक जगह होता है ना, ठीक है ना, वहां से कंट्रोल सिग्नल इशू होते हैं सारे, RD बार, WR बार, वो तो सुने होंगे, है ना।
अब यहां पर किस तरह से कंट्रोल होता है, हर चीज का लोकलाइज्ड भी है, सेंट्रल भी है। इनमें कब लोकलाइज्ड हो जाता है कंट्रोल, कब सेंट्रल कुछ पता नहीं। हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए सेपरेट कंट्रोल है, देखा जाए तो है। कहते नहीं कि इस चीज का कंट्रोल ब्रेन के पिछले हिस्से से होता है, इसका पता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि कैसे कंट्रोल, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो खैर चलो, ये तो है। Somebody is asking some question. अच्छा, रिकरेक्ट। एक बार फिर से बोलो। सर मैं कह रही थी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का फर्क है हमें। हाँ, कंस्ट्रक्शन, ये भी बात है। डिजाइनर कौन है ना, सर्किट डिजाइनर कौन है? अल्लाह, अगर अल्लाह ताला है तो यार होना ही था, अच्छा है ना। और अगर हम जैसा इंजीनियर होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ये तो फर्क तो रहेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले वो जैसा मैंने कहा ना, 1953 में मैककुलक-पिट्स मॉडल आया था। वो मॉडल ये था, इसको देखो। इसमें क्या है कि देयर इज ए कैलकुलेशन यूनिट, ठीक है ना, जो ये स्क्वायर, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कैलकुलेशन यूनिट। कैलकुलेशन क्या कर रही है ये? सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कमिंग, या सेंसरी है कोई भी इंफॉर्मेशन यार, हम अब इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सेंसर से है, चाहे हम फीड करें, कैसे भी कुछ भी करें। A1, A2 up to AM, these are the मतलब informations, है ना। They are attached certain weights. Weights का मतलब वही है कि किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है आपने जिंदगी में, ठीक है ना, उसको उतना वेट अटैच करो, ठीक है ना। ब्रेन खुद करता रहता है ये काम। तो W1, W2 एंड सो ऑन, ये वेट्स हो गए विच यू हैव अटैच। आर्टिफिशियल उसमें तो तुम्हें अटैच करने पड़ेंगे ना। तो भाई ये जो आपका जो कैलकुलेशन यूनिट है, व्हाट इट इज डूइंग, वेट्स को और इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर रही है। WI इंटू AI मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच वेट बाय दिस थिंग, इनपुट सिग्नल, सबका सम कर रही है। ALU यही तो कर सकती है, ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और माइनस थीटा का मतलब एक तरह से एक इंफॉर्मेशन को मतलब ऊपर, जैसे DC शिफ्ट करना किसी सिग्नल का, DC ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, या ब्राइटनेस, जैसे समझ लो कि टीवी की ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड बायस। उसको बोलते हैं बायस, थीटा, है ना। ये कैलकुलेशन कर ली इसने, जो आउटपुट आया इसका ब्लॉक का, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन वैल्यू, ठीक है ना। और उस एक्टिवेशन वैल्यू को उसके बाद में हमने मैप किया। There are two sets, one is the input set, one is the output set. Every number, every element of the input set is mapped onto a member of an element of output set. वो मैपिंग जो है, फंक्शनल मैपिंग जो है, that means f of x, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन जो है, वो आइडिया ये था, लीनियर प्रोसेसिंग नहीं है, हाईली नॉन लीनियर है ब्रेन की प्रोसेसिंग। तो वो नॉन लीनियरिटी कैसे लाओगे सिस्टम में? वो नॉन लीनियरिटी तुम इस मैपिंग के थ्रू लाओगे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट सिग्नल S, विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन वैल्यू X। तो ये नॉन लीनियरिटी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अब लोगों ने जो था, ये कई सारे फंक्शन जो थे, ये सजेस्ट किए भाई, ठीक है ना, आउटपुट फंक्शन है। बाइनरी फंक्शन, बाइनरी का मतलब सीधा ही है कि अगर एक्टिवेशन वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी तो आउटपुट विल बी 0, अगर उससे ज्यादा होगी तो आउटपुट विल बी 1, मतलब डिजिटल वे में कहो, ठीक है ना। देन सम सजेस्टेड रैंप फंक्शन, लीनियर फंक्शन, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c टाइप, बल्कि ये तो mx ही है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, y इक्वल टू mx। देन somebody said कि यार मजा नहीं आया, अभी भी तो बात लीनियर से ही रही, है ना। सिग्मोइडल फंक्शन, ये थर्ड वाला जो है वो सिग्मोइडल है। सिग्मोइडल का मतलब 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x, हाईली नॉन लीनियर सिग्मोइडल फंक्शन। तो उसकी मैपिंग इस तरह से है, उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, y और x के बीच में अगर ड्रॉ करोगे तो, ठीक है ना। तो लोगों ने ये सजेस्ट किए। परसेप्ट्रॉन एक बहुत ही फेमस ANN टोपोलॉजी थी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर जो थी, बहुत ही फेमस हुई है परसेप्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम अलग से आता है। था कुछ नहीं,
इनपुट वैसे ही है जो मैंने तुम्हें बताया कि इनपुट इंफॉर्मेशन आ रही है, वेट्स अटैच हो रहे हैं, समेशन हो रहा है, माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है ना, एक्टिवेशन वैल्यू तो आ गई। ओनली थिंग इज कि व्हेन द आउटपुट फंक्शन इज बाइनरी इन नेचर, तो उस न्यूरल नेटवर्क को परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, जब आउटपुट जो है बाइनरी नेचर का होगा, तो या तो आउटपुट 1 होगा या 0 होगा, उसको बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। ठीक है, जब लीनियर हो आउटपुट, जो मैंने लीनियर नहीं दिखाया था अभी आउटपुट, तो उसको बोलते हैं एडेलाइन न्यूरल नेटवर्क। ये थे एडेलिन, एडेलाइन या एडेलिन, चलो जो भी है, ठीक है ना, अडेप्टिव से आया ये। तो दैट मीन्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो भी होगा वो इस टाइप का होगा इन जनरल। देयर विल बी इनपुट न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड इनपुट लेयर। उसके बाद में हिडन लेयर, हिडन लेयर में जिस न्यूरॉन से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ब्रेन में तो पता नहीं कितने हैं, आपको कुछ नहीं लेना, अपने आप कैलकुलेशन होती रहेगी। और आउटपुट न्यूरॉन मीन्स फाइनल आउटपुट जो देगा, ठीक है ना। These neurons are interconnected. Every connection has got a weight attached to it. ठीक है ना। जब तुम कोई भी न्यूरल नेटवर्क बना लेते हो, आफ्टर दैट न्यूरल नेटवर्क इज ट्रेन्ड। what do you mean by training of the neural network? Training of the neural network means that whatever weights you have attached initially you have to attach some weight from your side, है ना, but those weights will not remain like that. You show an input example to the neural network, तुम input data उसको दोगे, आउटपुट भी तुम डिफाइन करोगे। वही वाली बात, बच्चे ने बता दिया कि ये 3 ब्लेड्स हैं, बीच में जो है एक राउंड चीज है, मोटर बता दी, है ना, ब्लेड्स का फॉर एग्जांपल कलर ये है, ये बता दिया, व्हाइट कलर का है या मैरून कलर का है, व्हाटएवर, दीज आर कॉल्ड फीचर्स, इनपुट फीचर। तो ये इनपुट फीचर, उसका कलर फीड कर दिया, उसका ये फीड कर दिया, उसके ब्लेड का साइज फीड कर दिया कि भाई लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, लेंथ टू विड्थ रेशियो, व्हाटएवर, हर एक चीज का सिचुएशन का अलग होगा। तो इनपुट डेटा तुमने उसको दे दिया कॉरस्पॉन्डिंग, और आउटपुट बता दिया, आउटपुट मींस फैन, ये फैन है। अब इसने वो अपने वेट्स एडजस्ट किए सारे, लर्न कर लिया, फिर तुमने उसको टेबल फैन की एग्जांपल दिखा दी कि यार ये भी है, ऐसा भी है, फिर उसने रीएडजस्ट किया वेट्स को, फैन, टेबल फैन, फैन मतलब चलो पेडेस्टल फैन, एग्जांपल दिखा दी ना उसको दुनिया भर की, पेडेस्टल फैन की नहीं भी दिखाई, डजंट मैटर, ठीक है ना, ब्राउन फैन, ये फैन, वो फैन सब दिखा दिए, 4 पंखड़ी वाला भी फैन दिखा दिया, 4 वाले भी आते हैं जिनके 4 ब्लेड्स होते हैं आजकल, वो भी बता दिया, सब बता दिया। After that, once it has learned means it has adjusted its weight finally, जब वेट्स में चेंज होना बहुत कम हो जाए, मतलब एप्सिलॉन चेंज हो, ठीक है ना, तब हम कहते हैं इट हैज लर्न्ड। देन आफ्टर दैट यू शो इट एन अननोन एग्जाम्पल, यू गिव इट अननोन इनपुट, तो मैं ये करेक्ट आउटपुट दे देगा। दिस इज द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मीनिंग ये है, न्यूरल नेटवर्क हैज टू बी ट्रेन्ड फर्स्ट विद द नोन एग्जाम्पल्स, वंस इट हैज लर्न्ड, आफ्टर दैट corresponding to an unknown situation, it will be giving you the correct output. ठीक है। अब इसकी तुम कहोगे जी एग्जाम्पल मतलब कहाँ है, ये सब टोपोलॉजीज हैं, वो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तुम्हें एप्लीकेशन ले आता हूँ। ये सब लर्निंग मेथड्स हैं इसके, हाउ इट लर्न्स, हाउ द कैलकुलेशंस आर डन, प्रोग्राम लिखा जाता है, कुछ है होता है विच इज यूज्ड कि भाई, तो तुमने इनपुट दिया, तुमने आउटपुट बताया, एक्चुअल आउटपुट क्या है, डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट क्या है, डिजायर्ड क्या होना चाहिए था, वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। उस एरर के कॉरस्पॉन्डिंग उससे प्रीवियस लेयर, यानी कि जो प्रीवियस हिडन लेयर होगी और आउटपुट लेयर, उनके पहले वेट्स जो है वो चेंज किए जाते हैं, उसके बाद में उससे पहले वाले वेट्स, लाइक दैट। अगर कई सारी हिडन लेयर है तो इनपुट पे इस तरह से आप पीछे 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 वाले वेट्स चेंज करते हुए बैक साइड से पहुंचते हो, इसलिए इसका नाम बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम पड़ा है। बहुत मैथमेटिकल है बिल्कुल सिस्टम, ठीक है ना, पूरा ये छोड़ो, ठीक है ना। ये मैं तो एप्लीकेशन दिखाना चाह रहा था, वो एप्लीकेशन ये है, सपोज कर लो, अब तो मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ, एक्चुअल प्रॉब्लम, दिस वाज माय पीएचडी प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम ये है
कि जब तुम ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, है ना, सर्जरी करवाने, भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन चले गए, है ना, तो क्या किया जाता है तुम्हारे साथ या किसी पेशेंट के साथ? सबसे पहला काम, व्हाट डू यू थिंक, सर्जरी से पहले क्या होता है? वो क्यों देते हो? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्यों करते हैं? मतलब ऑपरेशन से बेड बेड से उठ के भाग ना जाए, ठीक है ना, दौड़ गया तो क्या, किसका ऑपरेशन करेंगे? ठीक है जी, उसका ऑपरेशन करते हो, उसको कोई पेन फील ना हो, ये सब बातें होगी, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर किसी वजह से एनेस्थेटिक डोज ज्यादा दे दी जाए या कम दे दी जाए तो क्या इम्प्लीकेशन है इसके? अच्छा, पहले ज्यादा की बात कर लेते हैं ना। अगर मान लो कि तुमने ज्यादा डोज दे दिया एनेस्थेटिक डोज, तुमने, मीन्स जो डॉक्टर है भाई वो भी तो एक्सपीरियंस से, पहली बात तो तुम इसको अनहोनी मत समझ लेना कि मैं एक फिक्टिशियस सिचुएशन बता रहा हूं। लिटरेचर भरा पड़ा है, तुम नेट पे निकालो, पता नहीं कितने लोग रोते हुए मिल जाएंगे इकट्ठे, ठीक है ना। उनको जिनको ज्यादा डोज दी गई है ना, चले जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। कोमा से लौट के आए या ना आए वो ऊपर वाले की मर्जी है, ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है आपका बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। हालांकि ऐसा मतलब ये नहीं कि होता है, लेकिन 100 में से एक के साथ जरूर होता है, ठीक है ना। तो अगर तुम 100 पेशेंट्स के बाद में ऑपरेशन थिएटर में गए हो तो ध्यान रखना जरा, ठीक है। आइडिया ये है कि अगर वो 100 ठीक निकल गए तो मामला गड़बड़ है उसके बाद। भाई वही जैसा मैंने कहा, वो आफ्टर ऑल डॉक्टर करता क्या है? डॉक्टर जो है तुम्हारे ये देख के कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम 20-22 साल के हो कि 70 साल के हो, ठीक है, इस तरह। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर असेसेस योर दिस थिंग, बॉडी दिस थिंग, कैसी किस टाइप की हेल्थ है तुम्हारी, क्या इलनेस है तुम्हारी, और जेंडर भी। इवन नेचुरली एक मेल जो है वो ज्यादा, तुम सोचो कि एक 20 साल का लड़के को एनेस्थीसिया दो, एक 70 साल की बूढ़ी को दो, हो गया तो बूढ़ी का तो राम नाम सत्य हो जाए, है ना। या उसकी डोज उसको दे दी तो वो तो मस्ती मार रहा होगा बेड के ऊपर, ठीक है ना। यंग बॉय जो है अगर उसका सर्जरी कर दो उसी डोज के साथ में तो वो तो बेहोश ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो तो पता लगा नर्स को देख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा थोड़ी होती है सर्जरी यार, ठीक है ना। तो आइडिया ये है कि डिपेंडिंग ऑन क्या क्या है डॉक्टर असेस करता है, लेकिन डॉक्टर का यार वो भी ह्यूमन बीइंग है ना। अब तुम्हारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी वो तो उसको भाई को पता नहीं है। सोचा तो था ऐसा होगा, हुआ है नहीं वैसा जिंदगी में। ऐसा होता है क्या जो तुम सोचो हमेशा वैसा होता है? फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत होती, ऐसा है नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ तो उसके वो भाई जो था स्लिप हो गया, लाते रहो वापस उसको। और अगर और ज्यादा गड़बड़ हो गई तो पूरा राम नाम सत्य हो जाता है वहीं पे, ठीक है ना। फिर ना आया वो, ठीक है ना, किसी भी तरह से। अगर कम डोज रह गई तो फिर वही बात है कि कम डोज रहने से उसमें अवेयरनेस रह जाएगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है ना। तो चलो वो बात दूसरी है कि डॉक्टर नर्स जो मर्जी करे उनकी बातें सुन ले यार, तू मुझे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग ना ये भी सुनते हैं कि जैसे भाई ऑपरेशन थिएटर में मेडिकल अगर देखो तो क्या बात होती है, इतना ब्लड लॉस हो गया, इतना खून बह गया, मतलब उनको ये बातें याद रहती हैं फिर। और ऐसे कई लोग जो है उनको वैसे वैसे कुछ नहीं होता, कहते हैं ना कहानी है कि एक आदमी को सांप ने काट दिया, कुछ नहीं हुआ, साल के बाद उसको बताया तुझे सांप ने काट दिया था, तब मर गया वो पहले तो मरा नहीं। तो कई लोगों को ये कहो कि यार तेरा इतना ब्लड निकल गया था, तो उसको सुन के वो बेहोश हो जाएगा, उस दिन तो अनकॉन्शियस, पता नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा लिटरेचर जो है दैट इज फुल ऑफ सच इंसिडेंट्स, दे हैव नाइटमेयर्स थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है ना, उन्हें भूत ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट करेक्ट डोज इज गिवन टू द पेशेंट टू मेक हिम अनकॉन्शियस, ठीक है। अब यार किसी तरह से हम डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं क्या? टेक्नोलॉजी के से वाइज उसकी हेल्प कर सकते हैं क्या? सोच के देखो,
वो बेचारा निरीह प्राणी है, अपने एक्सपीरियंस से कर रहा है सब कुछ, ठीक है ना, जब तक कर रहा है। कैन यू डू समथिंग? ओके, देखते हैं। ये तो वो है कि कैसे बंदा जो है वही लास्ट वाला, वही जो डोज ज्यादा हो गई ना, सर्कुलेटरी अरेस्ट में हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले रेस्पिरेशन जाएगी, पहले ब्रीदिंग जो है ना वो जाती है, फिर उसके बाद में हार्ट जाता है, वो तो चलो अलग बात है, ठीक है ना। देखो तुम्हारा ये जो है ब्रेन, जरा इसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है ना। ब्रेन जो है जैसा मैंने कहा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस ईईजी सिग्नल, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम सिग्नल। अगर हम, और वो सिग्नल जो है वो अफेक्ट होता है, क्यों अफेक्ट होता है? हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जब तुम किसी को एनेस्थीसिया देते हो तो इसकी एक्टिविटी जो है स्लो डाउन हो जाती है। इनफैक्ट सारी स्लो डाउन हो गई यार, मोशन भी उसका स्लो डाउन हो गया, वो हाथ पैर भी नहीं हिला रहा। 2 घंटे अगर सर्जरी चलनी है तो फॉर दोज 2 आवर्स द पेशेंट इज पैरालिटिक। फॉर दोज 2 आवर्स पेशेंट पूरा पैरालिसिस है, उसको वो हिल डुल नहीं सकता, और हिल रहा है तो गड़बड़ हो रही है, डोज पूरी नहीं है, ठीक है। बेचारा पेन भी फील, मतलब अगर कर रहा हो, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं अगर बंदा पेन फील कर रहा है लेट अस से, और सर्जरी चल रही है, तो बिकॉज पैरालिटिक है वो बोल तो सकता नहीं, आवाज तो निकलेगी नहीं, पेन फील करता रहेगा। तो इसीलिए डोज सिंगल नहीं दी जाती है। मैं प्रैक्टिकली बात बता दूं आपको कि डोज जो है जब भी ऑपरेशन थिएटर में दी जाती है ना, तो 4 डोज दी जाती हैं। उनमें से एक एनाल्जेसिक डोज होती है जो कि पेन रिमूव करती है, वैक्यूरोनियम जो है आपको पैरालिटिक करती है, ठीक है ना। उसके अलावा मेमोरी लॉस के लिए एक दिया जाता है, और एक सब अनकॉन्शियस के लिए। तो क्या किया हमने, ईजी पेशेंट का ले लिया कि यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, लेट अस सी इट्स एक्टिविटी। ईजी लिया, पेशेंट का ईजी ऐसा आता है। पेशेंट का क्या मतलब, बंदे का ईजी, पहले तो वो बंदा ही था। ऊपर वाली जो वेवफॉर्म है ना, वो आप देख लो, ये अवेक है, वो अच्छा का अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ उसके साथ। जैसे ही उसको डोज दी, वो ये मिडिल वाला सिग्नल जो है, उधर से पता नहीं ग्रीन नजर आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इट इज ए ग्रीन कलर, है ना। और नीचे वाला जो सिग्नल है वो आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ दिस थिंग ऑपरेशन चल रहा है ना। ओ, अब आप ये बताओ कि आपने कह तो दिया कि ईजी स्लो हो जाता है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ओके फाइन, स्लो हो जाती है, लेकिन इस वेव फॉर्म को देख के डॉक्टर कुछ बता सकता है क्या कि वो कितना एनेस्थेटाइज्ड है? थर्ड वाली वेव, अगर फर्स्ट वेव फॉर्म दे दूं मैं आपको when he was awake and third wave form when he is into 5 minutes, क्या बता सकते हो कि कितना एनेस्थेटाइज्ड है? ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, वो कंपैरिजन क्या होता होगा, वही बात है ना। ईजी एक ऐसा सिग्नल है, इतना गंदा सिग्नल है कि ना उठाया जाता ना रखा जाता, ठीक है ना। इसको देख के आप कुछ नहीं बता सकते। जितना सुंदर हमारा ईसीजी होता है ना, उतना ही गंदा ईजी होता है, ये समझ लो। ईसीजी को देखकर तुम यहां तक बता सकते हो वेंट्रिकल के किस पोर्शन में का कौन सा, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई वाल्व बंद है कि ये है वो है, यू कैन टेल एनीथिंग, बट लुकिंग एट द ईजी यू कैन, इट्स बिकॉज इट इज ए रैंडम सिग्नल, है ना, स्टोकेस्टिक सिग्नल बोलते हैं इनको, ठीक है ना। एंड यू कैन सी किसी भी रैंडम सिग्नल को, इफ यू लुक एट द सिग्नल, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी यू कैन नॉट टेल मी एनीथिंग। उसका फेज तक नहीं तुम बता सकते, फेज के लिए भी वो चाहिए कि जीरो क्रॉसिंग्स कहां हो रही है उसकी, ठीक है ना। तो दिस यू कैन सी, आई थिंक एज सून एज ही वाज गिवन द डोज, द मिडिल वन, उसकी फ्रीक्वेंसी बिकेम लेसर, और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम लग रही है ना मिडिल सिग्नल की, एज कंपेयर टू द बॉटम वन एंड और द टॉप वन। तो जैसी डोज दी, हाँ स्लो डाउन हो गया, मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन बॉटम तक जब तक आए फिर वो इंफॉर्मेशन भी खत्म हो गई यार, है ना। तो व्हाट वी कैन डू इज, यहां पे आती है तुम्हारी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। नॉइज रिमूव करके सिग्नल में से, ये नॉइज रिमूवल के तरीके हैं। सबसे पहले ये नॉइज, दिस इज द लार्जेस्ट नॉइज इन द सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉइज, 50 हर्ट्ज, ये सबसे ज्यादा दुखी करती है जिंदगी में, ठीक है ना। पता नहीं हाउ मेनी अप्लायंसेस आर देयर इन द ऑपरेशन थिएटर, हाउ मच 50 हर्ट्ज नॉइज दे आर जनरेटिंग। लेकिन नॉच फिल्टर से तुमने जैसे ही पास किया, नॉच फिल्टर के बाद में सिग्नल मोर और लेस क्लीन हो गया, ठीक है ना। सो ओके, ठीक है। सेकंड थिंग इज ईसीजी।
ECG signal, if you think that it doesn't affect EEG, no, you are wrong. ECG is a very strong signal, 1 to 4 millivolt amplitude. And this is only microvolts, 20 to 50 microvolt. So by this signal is through the pathways और जितने भी organ tissues से यहाँ तक पहुंच रहा है, and it interferes. So that has to be removed. तो वो क्रॉस कोरिलेशन करके at what time the यहाँ से कैनुला लगा देते हैं, पल्स तो यहाँ पे भी आ रही है ना, तो दैट मीन्स उसका EEG का उसके साथ क्रॉस कोरिलेशन करके वो हटा दिया ECG का इफेक्ट. ये है आई ब्लिंकिंग. व्हेन आई ब्लिंक माय आईज, ठीक है ना, उस टाइम जो सिग्नल जनरेट होता है ब्रेन से वो ये है, देखो ये आई ब्लिंक्स है. नॉर्मली EEG से तो काफी है, एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है. Various parameters of the signal in time domain and frequency, also wavelet domain, ठीक है ना, टाइम फ्रीक्वेंसी मतलब, ठीक है ना. तो टाइम डोमेन में ये सारे पैरामीटर्स किए, एंट्रोपी, ये वो एंट्रोपी वगैरह आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी कभी, ठीक है ना, कितनी रैंडमनेस है किसी सिग्नल में या इरेगुलरिटी, ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के, बैंड पावर्स कितनी है, 0.5 हर्ट्ज टू 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज टू 8 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज टू 13 हर्ट्ज बैंड्स होते हैं, ठीक है ना. बैंड में कितनी पावर कंटेंट है. आप कह रहे हो कि सिग्नल ब्रेन एक्टिविटी goes, because that actually happens. फ्रीक्वेंसी बैंड्स में पावर जो थी वो लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में आ जाएगी, where dose is more. इस तरह से वेवलेंथ तो ये निकाले. इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि भाई देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स. अगर एक मान लो कि मैं इन so many parameters, if I want to suppose handle them all together, it will be very, very difficult for me, ठीक है ना. तो let me see those parameters which are most important for me, which are changing according to the anesthetic dose maximum. Okay, so those parameters were found out. Distributed analysis ये mathematical techniques है, ठीक है ना. उसके बाद में we zeroed down to certain parameters. उसमें ये approximate entropy, average frequency of the signal, ये सब मैथमेटिकल वर्क. डेल्टा बैंड में कितनी पावर है भी, दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच वी जीरो डाउन. कि वो अनकॉन्शियस हो गया कि उस जोन में आ गया कि नहीं आ गया जब उसके सर्जरी होनी चाहिए. आर यू गेटिंग इट? ये तो चलो जोन की बात लग गई. वी वांटेड टू गो फर्दर. वी वांटेड टू गिव ए न्यूमेरिकल नंबर टू द एनेस्थेटिस्ट इज कॉल्ड डॉक्टर. मतलब डॉक्टर का मतलब सर्जन से नहीं है यहाँ पे, सर्जरी तो दूसरा करता है और डोज देता होता है, कंट्रोल करता रहता है एनेस्थेटिक डोज को फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी. और 2 आवर सर्जरी चलनी है तो कंटिन्यूअसली ही विल, बाय एक्सपीरियंस ना करता, अभी तो बाय एक्सपीरियंस ही करता है, ठीक है ना, करता रहता है वो कि कब बंदा जो है थोड़ा सा भी उसको पता लग जाता है कि बंदे का स्लाइट मूवमेंट हुआ तो ही इंक्रीजेस द डोज, ठीक है ना. फिर EEG को देख के ये भी पता लगा लेते हैं वो लोग बाय जस्ट बाय लुकिंग एट द EEG कि ये इतना हो गया कि दैट मींस डोज ज्यादा हो रही है तो डोज को कम कर देंगे. फिर वो चलता रहता है, ठीक है ना. तो वन पर्सन इज कॉन्स्टेंटली देयर टू मॉनिटर दिस, है ना. तो एज आई सेड, we wanted to go further. We wanted to give a numerical value to the doctor कि how much anesthetized he is, ठीक है ना. उसके लिए हमने फजी लॉजिक का. फजी लॉजिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है. द वे वी थिंक, है ना. फजी लॉजिक सुना है आपने, है ना. फजी लॉजिक का मतलब ये है कि हमारी जितनी थिंकिंग होती है ना वो क्रिस्प थिंकिंग नहीं है लाइफ में. डू वी थिंक क्रिस्प? नेवर, ठीक है ना. थोड़ा सा फैन बढ़ा दो, थोड़ा सा हीटर का वो बढ़ा दो, आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो यार कम कर दो कूलर का पानी. यही तो होता है. ये जो कम ज्यादा कर रहे हैं या इस तरह की थिंकिंग जो है, आप ये तो नहीं कहते यार कि टेम्परेचर जो है ना यार 15.7 कर दो, ऐसे तो आप कहते हो थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा क्या मतलब यार. This is the way our brain thinks. It never thinks in a crisp manner.
है ना, फजी मैनर कहते हैं इसको, कि यू आर थिंकिंग फजी, और वो फजी काम करता है, ठीक है ना। तो फजी का मीनिंग वही है कि एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं, आई एम गोइंग टू टर्न 60, ठीक है ना। अगर तुम ये कहते हो कि मैं 60 में ओल्ड हो जाऊंगा, तो अभी 59 में मान लो हूं, तो मैं ओल्ड हूं या नहीं हूं? नहीं, बीच का क्या, बीच का तो क्या बीच का क्या मतलब यार? अच्छा, और 58 से 60 के बीच में, फिर अगर 58 वाला बंदा है, अच्छा अगर 59 और 58 में कंपेयर करना है तो भी बीच में है वो भी। हाँ तो बीच का पीरियड है। हाँ, उस टाइम मतलब पर्टिकुलर मतलब कह नहीं सकते कि हाँ ये उस एज में उस एज में है, तो वो फजी लॉजिक के। हाँ, तो उसको क्या कहोगे फिर? तो मैथमेटिकली अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम मैथमेटिकली इस बात को कह के दिखाओ, हाँ, वो फजी मैनर को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करोगे इस बात को? कोई 57 ईयर्स का है, कोई 58 का है, कोई 59 का है, कोई 60 का है? प्रोबेबिलिटी के साथ इसको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करोगे। प्रोबेबिलिटी किसी चीज के अकर होने के का चांस है। अगर मैं 58 का हो गया तो ये कोई बाई चांस नहीं है, उसके साथ कोई चांस एसोसिएटेड नहीं है। देखो ठीक है ना, कि बाई चांस ही हो गया, वैसे तो ऊपर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंचा, है ना, चांस नहीं है। आइडिया ये है कि दुनिया में अभी तक when we think crisp in the crisp manner, तो there are two sets. One is old people का set, one is young people का set. If you belong to the old people का set, then you are not young, you are old. अगर तुम इधर हो तो इधर रहो. This is called crisp thinking, है ना. फजी थिंकिंग या फजी जो लॉजिक है वो ये कहती है कि भाई तुम अगर 59 60 तो ओके, तुम यंग हो, उधर 100% लेटर से ओल्ड हो, अब बीच का रहा तो कह सकते हो यार जो बंदा 55 का है लेटर से, वो ओल्ड पीपल के सेट को भी बिलोंग कर रहा है, एज वेल एज ही इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ यंग पीपल ऑल्सो. ओल्ड पीपल के सेट को लेटर से वो 90% बिलोंग कर रहा है और इधर 10% बिलोंग कर रहा है. इसको कहने में क्या दिक्कत है? इसी तरह से 59 ईयर्स का प्रोबेबली वो 98% बिलोंग कर रहा है ओल्ड को, और इधर सिर्फ 2% रह गया. वो जवानी जाने वाली है ठीक है ना उसकी. तो कहने का भाव ये है कि दैट मीन्स यू कैन एसोसिएट ए मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप वैल्यू टू द सेट्स ऑफ टू द सेट ओल्ड पीपल वॉट एवर. ठीक है ना, एज के साथ करो, हाइट के साथ करो, वही वैसे हाइट के साथ है कि 6 फीट का है तो टॉल है, 2 फीट का बंदा जो है वो बेचारा ड्वार्फ है, नॉट जिसको नाटा कहते हैं. तो बीच के लोग क्या हुए? दे आर बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ टॉल पीपल ऑल्सो, वो भी बोना भी है, लेकिन इतना उसको बिलोंग कर रहा है, इतना इसको बिलोंग कर रहा है. दैट इज कॉल्ड फजी थिंकिंग. तो हम फजी करना चाहते थे उसको. फजी लॉजिक की जो वो है न्यूरल नेट, अभी मैं आऊंगा उसको, फजी पे भी आ जाऊंगा. पहले ये देख लो न्यूरल का दूसरा बढ़िया एग्जांपल, ठीक है ना. तुम बाजार से चाय लाते हो, टी लेते हो, तुम्हें कैसे पता लगता है कि टी अच्छी है या कौन सी क्वालिटी जो है टी की अच्छी है, कौन सी बुरी है? कैसे पता लगाते हो? हैं? बाय स्मेल. और किसी का कोई जवाब? तुम टेस्ट. मतलब स्मेल, पहले स्मेल पत्तियों की स्मेल है ना, तो ये भी पत्ती वैसे ही खा लेंगे है ना. साइज और that means there are certain physical parameters
कुछ केमिकल पैरामीटर्स हैं जो तुम बता रहे हो ना, टेस्ट और फ्लेवर, दीज आर केमिकल, क्योंकि दे आर जनरेटेड बाय द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द टी लीफ, है ना। और जो तुम बता रहे हो कि भाई साइज देख लेंगे, शेप देख लेंगे, कलर देख लेंगे, मॉइस्चर देख लेंगे, मॉइस्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं, उसका टेक्सचर देख लेंगे, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फिजिकल पैरामीटर्स, उसकी डेंसिटी देख लेंगे, ठीक है। तो इन चीजों से डिसाइड होता है, खैर चलो, क्वालिटी, ठीक है ना। वाई क्वालिटी डिटर्मिनेशन ऑफ टी इज इंपॉर्टेंट, मैं इस प्रॉब्लम पे क्यों आया एट ऑल, तो क्यों करना चाहते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व, कि हम टी की क्वालिटी को डिटरमिन क्यों करें, अच्छा बताओ, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट। नहीं, वो तो ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को क्यों डिस्कस करके टाइम खराब करूं अपना, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना तुम्हारा। तो चलो अपना कर रहा हूं यार। ठीक है, कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हो कि इंडिया जो है वो थर्ड एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, थर्ड जो टी जनरेट करता है इंडिया, वो थर्ड है ना। अब थर्ड है और बहुत सारी टी एक्सपोर्ट होती है, इस एक्सपोर्ट टी का आपको प्राइस पता है, कि गैस कर सकते हो कि टी का कि जो चाय एक्सपोर्ट होती होगी वो किस रेट की चाय एक्सपोर्ट होती है, सोच सकते हो आप, इंडिया कितना अर्न करता, किस हिसाब से अर्न करता होगा चाय को एक्सपोर्ट करके, अप टू 35-40,000 रुपीज पर केजी, 1 किलो चाय 35,000 रुपए किलो, ये रेट है मार्केट में। वो चाय आपने जिंदगी में ना सुनी होगी ना देखी होगी, आपको जो चाय मिलती है, ठीक है ना, वो वही मिलती है जो मिलती है, डस्ट मिलती है आपको, ठीक है ना। आपको तो कभी दर्शन भी नहीं करवाए जाएंगे, आपको असली बासमती के तो कभी नजर ही नहीं आएगी लाइफ में, ठीक है ना, वो बासमती बाहर जाता है सारा, ठीक है, ऐसी चाय है, ठीक है ना। तो जबरदस्त अर्निंग होती है टी से, जब इतनी अर्निंग होती है तो दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी होना ही होना है, क्वालिटी, इसलिए टाइम खराब कर रहे हैं वो, तो है ना। तो चलो अब यार बात ये है क्वालिटी कैसे निकाली जाए। अभी तक क्या होता है, अभी तक टी टेस्टर्स होते हैं, हर एक जो चाय का गार्डन होता है ना, तो वो टी टेस्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं, उनके पास एक तरह से समझ लो कि दी हुई नेमत है उनको, सकते हैं ना, वो टी का एक चाय की क्वालिटी बता देते हैं। अगर उन्होंने 10 साल पहले भी उस चाय का सिप लिया है ना, तो बता देंगे 10 साल पहले मैंने ये सिप लिया था, एक से, लेकिन वो एक से 1 लाख रुपए, उससे कम नहीं। ऐसे ही नहीं कि चाय पिला दी तो पता लग गया, ठीक है ना, उनके यूजुअल चार्जेस हैं, ठीक है ना। चलो चार्जेस भी दे दिए जाएं यार बंदे को, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आज बंदा टाटा टी में वालों ने एम्प्लॉय कर रखा है, उसने वो कुछ बता रहा है, कल को ब्रुक बॉन्ड वालों ने या कुछ ने दूसरे लिप्टन ने ले लिया, पता नहीं क्या क्या है ना। ये कार्टेल बना लेते हैं भाई कि तू इस चाय, पॉलिटिक्स है इसमें है, तो बस यहाँ पे भी है। हम यार इससे बचाना चाहते हैं, हम टी टेस्टर्स की उससे बचाना चाहते हैं इसको, पॉलिटिक्स से, है ना। तो यार कुछ किया जाए तो करते हैं, चलो। वो ये है कि यार हम चाय के, तुमने इतने सारे पैरामीटर्स मेरे को बताए, फिजिकल और केमिकल, हम अगर इनको डिटरमिन कर लें और न्यूरल करवा लें पहले से एक बार, तो हमें ये है कि हाँ, वो जो एक बार तो टी टेस्ट बताई हुई, हाँ ये ग्रेड, तो हमने चाय से ग्रेड हमने न्यूरल, उसके बाद जब वो ट्रेन हो गया, उसके बाद तुम मुझे कोई अननोन चाय दे दो मार्केट से लाके, उसका ग्रेड मैं बता दूंगा आप तुम्हें। अब मुझे टी टेस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम मेरे पास में। तो यही किया हमने, सीसीडी कैमरा से उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर, उसका टेक्सचर, ये चीजें उससे निकल जाती हैं।
मॉइस्चर सेंसर से मॉइस्चर पता लग जाता है। और इसके अलावा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर्स होते हैं विच टेल यू द केमिकल्स प्रेजेंट इन द टी। जो वोलेटाइल केमिकल्स हैं वो उसका अरोमा बताएंगे, और जो नॉन वोलेटाइल केमिकल्स हैं वो उसका टेस्ट बताएंगे। ठीक है कि नहीं? उनसे पता चल जाता है वो। इन सब चीजों को न्यूरल नेटवर्क में फीड कर दिया, दुनिया भर की चाय से हमने ट्रेन करवा दिया। अब तुम कोई सी चाय ले आओ मेरे पास, ये ट्रेंड है हमारे पास सिस्टम। तो न्यूरल नेटवर्क का ये एडवांटेज है। ठीक है ना? इसके अलावा सारे वो टरबाइन का ब्लेड जो है वो ब्रेक हो जाता है, टरबाइन ब्रेक हो जाता है तो वो 210 मेगावाट जो है वो स्टॉप हो गया, काम शट डाउन हो गया ना। ये नहीं हम चाहते यार। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्टिव समथिंग विच इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। एक चीज होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो आप तब करते हो, तैयार रहते हो कि भाई जैसी कोई चीज खराब हो चल रिप्लेस। प्रिडिक्टिव का मतलब ये है कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये चीज खराब हो जाएगी अभी कुछ टाइम के बाद। वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। अगेन जब भी कोई चीज मान लो ब्रेक होनी है, ब्रेक होने से पहले क्रैक होगी, ब्रेक बाद में होगी, क्रैक पहले, उसके अंदर क्रैक पहले आएगा। क्रैक जब होगा तो अकॉस्टिक एमिशन होता है। जब भी कोई चीज क्रैक होती है ना तो आवाज आती है। वो आवाज किस, डिपेंडिंग अपॉन द क्रैक, किस फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन अकॉस्टिक जो सेंसर्स हैं दे कैन पिक अप दैट। तो दैट मीन्स अगर ब्लेड पे मैं अकॉस्टिक सेंसर माउंट कर दूं और उसका सिग्नल मेरे पास आ रहा है तो वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोटर, जनरेटर वगैरह, टरबाइन जैसे मूव कर रहा है तो उसके एक वाइब्रेशन सिग्नेचर्स होंगे। जब भी उसमें क्रैक या ब्रेक जो भी कुछ होगा ना, उसके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वाइब्रेशन सेंसर यार बड़े कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है ना? एक्सेलेरोमीटर्स होते हैं विच पिकअप द वाइब्रेशन। तो इस तरह से सेंसर्स हमने पिकअप कर लिया, उनका सिग्नल प्रोसेस कर लिया। उसके बाद में उनका वही है कि एक न्यूरल नेटवर्क को उसके फीचर्स जो है, सिग्नल के फीचर्स यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन यू हैव टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क, जो कि ये बता देगा ये ब्रेक होने वाला, किस सिचुएशन में किस टाइप की का इनपुट सिग्नल आना चाहिए, आ रहा है, उस पर बेस्ड आउटपुट। ये सक्सेसफुली वहां पे इंप्लीमेंटेड है इस टाइम, जो कि चल रहा है और बताता है कि उससे पहले ही मतलब तैयारी हो जाती है। सारी 2 दिन बाद ब्रेक होने वाला है, लाके रख लो नया ब्लेड, इमीडिएटली चेंज। ठीक है ना? फोरियर डोमेन में इसीलिए जाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बेस्ड फीचर्स करने के लिए। डिसीज डायग्नोसिस, आर्थराइटिस की डायग्नोसिस, ठीक है ना? ये इमेज लेके, एक्सरे इमेज लेके, उस एक्सरे इमेज से फीचर्स निकाल ले। फीचर एक्सट्रैक्शन मेन चीज है, देखो, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। उसका न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना उन फीचर्स से, वो दो फीचर्स विल एक्ट एज इनपुट। साथ में बता दो किसको आर्थराइटिस है, किसको नहीं, मैं फिर तुम्हें बता दूंगा कि इसको आर्थराइटिस है या नहीं। ठीक है ना? देन लंग डिसीजेस, ठीक है ना? एमआरआई स्कैन से फेशियल एक्सप्रेशन में प्रिडिक्ट कर सकता हूं, फेशियल एक्सप्रेशन उसके, ठीक है ना, कि किस टाइप उसकी इमेज लो बंदे की, उससे फीचर्स निकाल सकते हो और बता सकते हो कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन दुखी हो रहा है। अब इस टाइम तुम दुखी हो रहे हो अब तो। ईसीजी के में बहुत कामयाब है न्यूरल नेटवर्क ना, ईसीजी में बहुत सक्सेसफुल है कि वेंट्रिकल फेल है कि वाल्व गया, क्या नहीं गया। ठीक है ना? जॉन्डिस में बहुत, जॉन्डिस तो कलर से पता, मतलब कलर ये है कि हम नहीं देख पाते, सीसीटी कैमरा देख लेता है, तो इसमें बहुत ज्यादा खैर इंजीनियरिंग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क जो है बहुत जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा आइडिया। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो कुछ, मतलब तुम्हारी क्या डाउट।